स्वागत है इस नए पार्ट में। पिछले पार्ट में हम जो है अब्रप्टली एंड हो गया था दूसरा पैराग्राफ जो हम कर रहे थे। इसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि एल्विन ग्लीन की जो कहानी है वो कैसे आगे बढ़ती है। So the last part of this video was abruptly ended due to some technical error, but then we will continue this lesson and we are going to cover the next part. Stay tuned because you are going to get something very unique on this lecture series, on this lesson series. Once I have explained these paragraphs, I will do a video where I will show you how to extract the meaning of this sentence. So if you go through that video, instantly you will learn how to extract the meaning from these lines on your own. You won't be needing any help, you won't be needing any guide. You would be able to extract the meaning on your own, because language is sometimes in a way if you look at the syntax of the language. Syntax, have you heard of this term, syntax? Language is made of many things: phonetics, phonetics, morphology, syntax, and semantics. These are four levels of language: ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान. So these are four levels of language, and any language of is made of these four basic levels of structure, these four structures, levels. Okay, and if you understand that how does these how does this level function, what are the nitty-gritties of this level, you would be automatically able to understand the language. Similarly is the case with morphology. It is the science of words, how words are formed, how how do they change their form, how do they change their forms, है ना? What does it mean by words changing their forms? You know, you know, first form, second form, third form. I just mean that. But it is like, you know that there is a word called go, went, gone. Okay. Now you have studied or you have been taught in a way that this is first form, second form, third form. ऐसे ही आपको आपकी क्लास में पढ़ाया गया है ना? आपके जितने भी अब तक के जो टीचर्स रहे हैं उन्होंने आपको ऐसे ही पढ़ाया है कि ये गो ऐसे वेंट हो गया और वेंट होके गॉन हो गया. ठीक है, लेकिन ये ऐसा ऐसा कैसे हुआ और ऐसा बाकी जगहों पर किन परिस्थितियों में होगा? ठीक है, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मॉर्फोलॉजी. ठीक है, शब्द विज्ञान इसको बोलते हैं. तो मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल गिव यू एन आइडिया, स्लाइट आइडिया, हिंट, so that you can understand this, that there is a world of grammar of above beyond traditional grammar. जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर के रूप में पढ़ाया जाता है वो एक्चुअली एक सेट ऑफ रूल्स है, वो एक्चुअली ग्रामर है नहीं इन ए वे. ठीक है, लैंग्वेज का जो ग्रामर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है. इफ यू अंडरस्टैंड इट देन यू वुड फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स लाइक मैथमेटिक्स. इट्स वेरी सिंपल. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट्स डन. So I'll do a lesson on it later on. Let's begin this paragraph. It was then discovered that her hearing was severely impaired. It was then, तब ये पता चला that कि उसकी hearing, किसकी, एल्विन ग्लिन की hearing was severely impaired. वो बुरी तरह से प्रभावित थी, खराब थी. As a result of gradual nerve damage.
क्यों हुई थी उसकी हियरिंग खराब? क्योंकि जो धीरे धीरे, शनय शनय, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली, नॉट अब्रप्टली, नॉट इंस्टेंटली, नॉट इन अ हार्ट बीट। इन अ हार्ट बीट एक फ्रेज है, ठीक है, जिसको आप, जिसका मतलब होता है कि अचानक से, झटके से, पलक झपकाते हुए ही। तो इट डिड नॉट हैपन इन अ हार्ट बीट, इट हैपेंड ग्रेजुअली, इट हैपेंड स्लोली, ठीक है। Why did it happen? That a nerve which is responsible for hearing, that was impaired. They were advised, who were advised? They were advised that she should be fitted with the hearing aids. उसके पेरेंट्स, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इफ यू कैन सी, दिस इज हाउ ग्रामर शुड बी लर्नड एंड टॉट। दे वेर एडवाइस, उनको सलाह दी गई कि शी शुड बी फिटेड विथ एवरीथिंग विथ हियरिंग एड्स, उसको कान में हियरिंग एड्स पहनाना चाहिए। आप यू नो हियरिंग एड्स, जिनको कम सुनाई देता है उनके कान में एक मशीन लगाई जाती है। सो हियर इज अ स्मॉल assignment for you. Go on internet, Google, and search what are hearing aids. Look for shops or clinics which which sells hearing aids. Okay, so this is so that you can understand hearing aid कैसा होता है। And sent to a school for deaf, जो बाहरी लोगों का स्कूल है इसमें उसको भेज दिया जाए, ऐसा उन्होंने, उनको सलाह दी गई, उनके पेरेंट्स को सलाह दी गई। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, अचानक जो है सब कुछ अंधेरा छा गया, आंखों के सामने अंधेरा छाना, सुना है, वही हो गया एल्विन के मामले में। एल्विन के आंखों के सामने अचानक जो है अंधेरा छा गया, क्योंकि सब कुछ बदल गया। बट लेकिन एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, ठीक है, लेकिन एल्विन नहीं करने जा रही थी। क्या नहीं करने? गिव अप। गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, मतलब छोड़ देना कि चलो ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, छोड़ देना। एल्विन लेकिन छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। किस बात की का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी? किस बात के लिए वो डिटरमिन्ड थी? टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वो एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, डिटरमिन्ड। एंड अब दूसरा सेंटेंस, परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, क्या करने के लिए? परस्यू, परस्यू करना मतलब, परस्यू, परस्यू एक शब्द है, मतलब उसको आगे बढ़ाना, आगे करना, उसको उसमें उसको आगे ले जाना। सो लाइक यू कैन यूज दिस सेंटेंस इन दिस वर्ड इन योर ओन में, आई एम डिटरमिन टू परस्यू माई इंटरेस्ट इन प्लेइंग गुल्ली डंडा, ठीक है, परस्यू, आई एम डिटरमिन्ड टू परस्यू माई इंटरेस्ट इन भैंस चराना, ठीक है। सो लाइक दिस, तो परस्यू मीन्स शी वॉज डिटरमिन्ड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, वो अपने संगीत में, अपने जो उसकी रुचि थी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया कि अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, ठीक है। अब इसको इंटरनेट पे सर्च करना है और फटाक से देखना है कि ये दिखता कैसा है, ठीक है, बिना उसके आगे नहीं बढ़ना है। So pause this video and go on internet and watch. Just search on Google that how does xylophone look, and then most important thing, come back. ठीक है, that is most important thing. और एक दिन उसने देखा कि कोई बच्ची जो है प्लेइंग, बजाने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले करना, ठीक है, बजाना डज नॉट मीन रिंग और ब्लो, ऐसा नहीं है, प्लेइंग। One day she noticed a girl was playing a xylophone and decided that और उसने निर्णय किया कि, क्या निर्णय किया कि she wanted, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? यू जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। उसने चाहा, क्या चाहा? टू प्ले इट, टू, उसने भी, उसको भी प्ले करना है, ऐसा उसने चाहा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अब उसके बाद क्या? मोस्ट ऑफ द टीचर्स, ये भी एक फ्रेज है, ज्यादातर शिक्षकों ने, ज्यादातर शिक्षकों ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर,
उन्होंने उसको क्या किया, हतोत्साहित किया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक ईएस फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, डिस्करेज्ड उसको हतोत्साहित किया, हर, बट लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट ने, अब ये क्या है, इसको भी आप सर्च करके देखिए, जो जाइलोफोन बजाता है उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है, रॉन फोर्स। इसको अभी इस चैनल पे एक शॉर्ट अपलोड किया है मैंने, उसमें इनका जिक्र आया है। उन्होंने क्या किया, स्पॉट किया। स्पॉट करना मतलब पहचाना। क्या पहचाना, उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता। उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वो कैसे पहचानने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो दो बड़े ड्रम थे, उनको जो है अलग अलग नोट पे ट्यून कर दिया, ठीक है। अलग अलग नोट पे क्यों ट्यून किया है, ताकि वो जो लड़की है वो अलग अलग ट्यून पहचानना सीख सके, ठीक है, डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने उसको बोला, एल्विन ग्लेन को, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब ये एक नई बात यहाँ पर आ गई है। व्हाट डिड ही से टू हर, डोंट लिसन थ्रू हर योर ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं हुआ, समझ गए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए हर चीज में मतलब नहीं होता है ना, ये भी एक बात है, ये भी हमको समझना होता है। एक सामान्य व्यक्ति को अगर आप कहें जो कान से सुनता है कि कान से मत सुनो, इसका क्या मतलब हुआ, जो कह रहा है वो पागल है ना। तो बिल्कुल सही बात है, सामान्य व्यक्ति के लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि कानों से मत सुनो। लेकिन चूंकि जिससे कहा जा रहा है वो सामान्य नहीं है ना। सो दिस सेंटेंस डज नॉट मीन एनीथिंग टू अस, एवरीथिंग हैजंट मीन टू एनीथिंग एवरी टाइम। There is no meaning always in the sentence or anything. But this statement is being told or said to somebody who is not normal, who is deaf. What does it mean? You do not have your ears to listen, है ना? Then you should try something else. Why? आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जिससे एक चीज ले लेता है उसको दूसरी कोई चीज दे देता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी, स्पेशली फॉर दोज हु आर डेफ एंड ब्लाइंड। उनको, उनके कुछ जो सेंसेस होते हैं ना, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी थोड़ी अलग तरह से डेवलप हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है। जिन जो बहरे, जो अंधे होते हैं, इफ यू नो एनी ब्लाइंड फ्रेंड, है ना, ब्लाइंड, तो उनको सुनाई बहुत तेज देता है, वो शब्द को बहुत अच्छे से पहचानते हैं क्योंकि आंख चली गई है। अच्छा, इसमें कुछ सुपर नेचुरल नहीं है, इसमें कुछ ऐसा पारलौकिक नहीं है, क्योंकि आंख देख नहीं रही है तो कान पे ही सारा ध्यान है। इसी तरह ये बाहरी लोगों के साथ भी है कि अब उसको ये कह रहा है कि भैया तुम कान से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब कैसे सुनना है, कुछ और तरीके से सुनो, ये एल्विन को पता है। अब आगे एल्विन कहती है, सेज एल्विन, है ना, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एल्विन ने कहा कि जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मुझे अचानक लगा कि मैं जो हायर ड्रम है, जो ऊंचा वाला ध्वनि का ड्रम है, उसको कमर के ऊपर के शरीर से सुन पा रही हूँ, और जो लोअर वन है उसको कमर के नीचे के हिस्से, शरीर के हिस्से से सुन पा रही हूँ, ऐसा एल्विन ने कहा। अब ये भी, इसमें भी क्या मीनिंग है हमारे लिए, है ना। ये तो एक मीनिंगलेस सेंटेंस है एक नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है, कि भाई अब अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम कान बंद कर लो और मैं वहाँ जो है ढोल बजाने जा रहा हूँ, तुम जो है कंधे के ऊपर के हिस्से से कुछ सुन लो और टांग के नीचे के हिस्से से कुछ सुन लो। दिस इज a meaningless sentence actually, but for us, for Elvin, it was meaningful sentence. What does it mean? That once, since her ears were not working, so she aligned her attention. She realigned her attention towards the sound through other body parts. See, everything is about attention. अगर आप चाहें ध्यान दें तो वो हो ही सकता है, हो ही जाता है ना, चाहे वो कैसे भी हो। तो उसी तरह एल्विन ने अपने शरीर के अंगों से, हायर ड्रम जो है वो कमर के ऊपर से सुन रहा है, उसके हिस्से से सुना जा रहा है, लोअर ड्रम जो है लेस डाउन सुना जा रहा है, ऐसा हुआ।
फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फोर्ब्स ने उसी जो ये वॉरन फोर्ब्स हैं उन्होंने इस अभ्यास को दोहराया, इस अभ्यास को दोहराया। इससे क्या हुआ, एंड सून, और उसके बाद जो है दोहराया, और सून एल्विन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और उन्होंने बार बार ऐसा किया तो एल्विन को पता चला कि वो जो है अपने शरीर के जो हिस्से हैं उसके अलग अलग हिस्सों से, शी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने अलग अलग हिस्सों से ये चीज सुन सकती है, अलग अलग ध्वनियां सुन सकती हैं। अब इसको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करना है क्योंकि हमको कान से सुनाई देता है। अब हम नहीं समझ सकते कि बहरा आदमी कैसे सुनता है, सिंपल एंड क्लियर। बस इस सेंटेंस को यहाँ समझ लेना है कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि एल्विन ने सेंस किया कि कुछ नोट्स, नोट्स मतलब जो म्यूजिक में जो टोन बजाई जाती है ना उसके लिए नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में। ऐसे ऐसे लिखा होता है ना। ये क्या होता है बिल्कुल पता नहीं है और जानने की भी कोशिश नहीं करनी है। जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात है। ऐसा ऐसा लिखा होता है ना। तो ये ध्वनियों का रिप्रेजेंटेशन होता है जहां तक मुझे पता है। तो वो जो नोट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो फील कर पा रही है। अब वो कहती है आई हैड, मैंने सीख लिया था, लर्न, सी द स्ट्रक्चर, सी द सेंटेंस, आई हैड लर्न। किस सेंटेंस, किस टेंस का ये वाक्य है? यू हैव टू टेल इट टू मी इन योर माइंड। पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड वर्ब आई है और लर्न फॉर्म थर्ड फॉर्म आया है। तो मैंने सीख लिया था, टू ओपन माई माइंड, कि मैं अपना दिमाग कैसे खोल पाऊं, एंड बॉडी, और अपना शरीर भी खोल पाऊं, टू द साउंड एंड वाइब्रेशंस, जो साउंड है और जो वाइब्रेशन है उसके प्रति अपना मैं दिमाग कैसे खोल पाऊं, शरीर कैसे खोल पाऊं, ये मैंने सीख लिया था। ये ऐसा वो कह रही है। द रेस्ट वॉज sheer द रेस्ट, बाकी जो बात है वो क्या थी, वह sheer डिटर्मिनेशन। ये एक अच्छा फ्रेज है। इस आगे के जीवन में until you die someday, जब तक कि आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर जाते हैं तब तक अगर आप इस फ्रेज को रट ले तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ठीक है, एकदम गारंटी है कि वो सुंदर हो ही जाएगा। sheer डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, है ना। हार्ड वर्क क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये सब अनावश्यक शब्द हैं। हार्ड कैसे हो सकता है वर्क? ये सब चला आ रहा है दुनिया में, जैसे दुनिया में बहुत सी बेकार की चीजें चली आ रही है वैसे ये सेंटेंस है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हो ही नहीं सकता, इंटरेस्टिंग वर्क हो सकता है ना, क्यूरियस वर्क हो सकता है, बेसिकली इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग होगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे वक्त सेंटेंस है जिनके वर्ड जिनका कोई मीनिंग नहीं है। जो इसका मीनिंग बता रहा है उसको ऐसे ही बता रहा है, जैसे कि बंदर चाय चाय चिल्लाते हैं पेड़ पे, वैसे ही वो ये सब हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क हो ही नहीं सकता, इसका कोई अर्थ नहीं है। वर्क अगर आप कोई लगातार कर रहा है, खूब मेहनत से कर रहा है, जिसको कहा जाता है कि वर्किंग वेरी हार्ड, इसका मतलब है ही इज लाइकिंग इट, ही नोज इट, ही इज इनटू इट, यही को बोलते हैं हार्ड वर्क। ठीक है, इट मीन्स द रेस्ट वॉज हर शेयर, दृढ़ निश्चय तो ठीक है समझ में आता है कि भाई मैं ये करूंगा, है ना। इट वॉज हर शेयर डिटर्मिनेशन, और मैं अगर यहाँ होता तो हार्ड वर्क की जगह लिखता इट वॉज डेडिकेटेड वर्क। वॉट? डेडिकेटेड। हार्ड शब्द शब्द गलत है ना। हार्ड होता ही नहीं है कुछ, हार्ड जो है मूर्खों के लिए होता है। हार्ड मीन्स डेडिकेटेड, इज नॉट डेडिकेटेड वर्क। ठीक है, वो एकदम समर्पित होकर काम करे। और ये आई एम नॉट टेलिंग दिस टू यू ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लेसन, आई एम टेलिंग यू दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, सो जब भी कभी कोई हार्ड वर्क बोले तो समझ लो कि उसकी अभी उसका बुद्धि का विकास ठीक नहीं हुआ, उसका मतलब हुआ है कि डेडिकेटेड वर्क। सो व्हाट वी हैव टू डू इज डेडिकेटेड वर्क। सो इन दिस वे शी अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये पैराग्राफ कवर कर लिया है। हालांकि ये लेसन थोड़ा धीरे चल रहा है, बट टुडे आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड कवर द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।